Hi, hello, uh, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to my YouTube channel. Om Sai Ram. Here we will discussing about रेलवे इंजीनियरिंग. हम आज रेलवे इंजीनियरिंग का बारे में मतलब डिस्कस करेगा. तो मेरा चैनल जो अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. मैं आने वाला दिन में बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़. आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का बारे में बोलेगा. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ कोनिंग व्हील, देन टिल्टिंग ऑफ रेल्स, देन एडवांटेजेस ऑफ टिल्टिंग ऑफ रेल्स, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट, देन सुपर एलिवेशन. उसका बाद हम डिस्कस करेगा पॉइंट एंड क्रॉसिंग, देन इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग, कैसा मेंटेन करना है पॉइंट और क्रॉसिंग को, और कर्वेचर जिसमें आता है आप लोग का लीड कर्वेचर, क्रॉस लेवल, देन स्टेशन एंड यार्ड्स, फैसिलिटीज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, वे साइड और क्रॉसिंग स्टेशन, टाइप्स ऑफ स्टेशन, टाइप्स ऑफ यार्ड्स, ट्रैक मेंटेनेंस, and tools required and their function, measuring equipment and under maintenance tool. So हम आपको एक PDF दिखाने जा रहा है, उस पर आप लोग देख लीजिए अच्छे से. नाउ आप लोग से हम डिस्कस करना जा रहा है रेलवे इंजीनियरिंग का रेलवे ट्रैक ज्योमेट्रिक्स, कोनिंग ऑफ व्हील्स. In coning of wheels, the tread or rim of wheels of railway vehicles is made in the shape of a cone with the slope of about 1/20. ये जो है ग्रेविटी ऑफ बेलास्ट का, ये आप लोग का ब्रॉडगॉज का वो मेजरमेंट है 1/20 जो बोल मतलब दिखा रहा है आपको. इट मेंटेन्स व्हीकल इन द सेंट्रल पोजिशन, व्हील्स रनिंग ऑन ट्रैक. WRT जो बोल रहा है वो है व्हील्स रनिंग ऑन ट्रैक ऑन स्ट्रेट ट्रैक. पोर्शंस ऑफ व्हील्स रनिंग ऑन ट्रैक हैव सेम डायमीटर, while on curved path the outer wheels has to cover larger distance than the inner wheel. Thus the portions of wheels running on track have different diameter which help in smooth running of wheels. उसका एडवांटेजेस है स्मूथ राइडिंग, help vehicle to negotiate curves smoothly, reduces wear and tear of wheels flanges. Damage is caused because of the friction action of rims with inner faces of the rail top. It gives an option of lateral drift of the hinge with each wheels. It prevents to some extent the slipping of the wheels. And this is the disadvantages of coning wheel. The pressure on the horizontal component of force near the inner edge of outer rail has a tendency to wear the rail quickly. The horizontal component has to turn the rail outward and hence the gauge may be widened. If no base plates are provided, slippers under the outer edge of the rail may be damaged. Then उसका बाद tilting of rails. ये है आप लोग का, ये आप लोग का है कोनिंग व्हील. ट्रैक जो है वो कोनिंग व्हील का है. तो उसका बाद आप देख सकता है कोनिंग ऑफ व्हील ऐसे होता है ट्रैक का जरिए. तो उसका बाद आएगा आपका टिल्टिंग रेल्स.
Now we will discussing about tilting of rails. In order to minimize the disadvantages caused by coning of wheels, the rails are tilted inward at an angle of 1 in 20. I mean वो ब्रॉडकास्ट का ट्रैक का और बलास्ट का ग्रेविटी फॉर्म है, मीटर लेंथ में डिपेंड करता है. दिस रिड्यूसेस वेयर ऑन द rail as well as on the tread of the wheel. Tilting of rails can be achieved by edging of sleepers, use of canted base plate. उसका बाद आएगा advantages of tilting of rails. Tilting the rails has the following advantages. It maintains the gauge properly. The wear at the head of rail is uniform. It increases the life of sleepers and rails. उसका बाद आएगा ग्रेडियंट. जो आप लोग का टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट दिखा रहा है आप लोग को, वो ग्रेडियंट का टाइप्स है. वो एक नंबर में आता है रूलिंग ग्रेडियंट, नंबर 2 मोमेंटम ग्रेडियंट, नंबर 3 पुशर ग्रेडियंट एंड 4 स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट. पहले हम डिस्कस कर रहा है रूलिंग ग्रेडियंट. द रूलिंग ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट टू व्हिच द ट्रैक मे बी laid in a particular section. It depends on the load of the train and additional power of the locomotive. The ruling gradients adopted. It planes in plain area. It is 1 in 150 to 1 in 200, and in hilly tracks it will be 1 in 100 to 1 in 150. Ruling gradient will be this particular section. पिक्चर दिखा रहा है आप लोग को. दिस इज ग्रेडियंट ट्रैक्स. यहाँ पे राइजिंग ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट है. ये है आप लोग का रूलिंग ग्रेडियंट. इट इज मैक्सिमम ग्रेडियंट which may be permitted on the section of the track. It is determined by maximum load that a locomotive can haul with maximum permissible speed. Extra pull required by locomotive on gradient with inclination. ये है रूलिंग ग्रेडियंट. द रूलिंग ग्रेडियंट इज द steepest gradient that exists in a section. It determines the maximum load that can be hauled by a locomotive on that section. Number 2, while deciding the ruling gradient of a section, it is not only the severity of the gradient but also its length as well as its position with respect to the gradients on both sides that have to be taken into consideration. उसका बाद आपको दिखा रहा है momentum gradient. Momentum gradient, it is more steeper than ruling gradient but do not determine the maximum load of train. Train need to acquire sufficient momentum to negotiate this gradient before reaching it. For example, rising gradient provided after a falling gradient in valleys. Additional kinetic energy or momentum required to overcome the steeper gradient is attained in the falling gradient section. Signals should not be provided at momentum gradient. Momentum gradient में सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता है. ये है आप लोग का मोमेंटम ग्रेडियंट. देन उसका बाद आएगा पुशर ग्रेडियंट. Pusher gradient is the gradient where an extra engine is required to push the train. There are steeper gradient than ruling gradient and are provided at certain places of mountains to avoid heavy cutting or to reduce the length of the track. A pusher gradient of 1 in 37 on Western Ghats and BG tracks is provided. On Darjeeling Railway with NG track, a ruling gradient of 1 in 25 is provided. For gravity of ballast in meter length, it is 1 in 25. यह है आप लोग का पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट.
ये आप लोग का फोटो जो दिख रहा है इसमें स्लाइड, वो पुसर ग्रेडियंट ट्रेन है। उसका बाद डिस्कस करेगा स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। Station yard gradient. Station yard gradient is the minimum gradient provided in the station yard for easy draining of rainwater. Gradients are avoided as far as possible in station yard due to following reasons. In station yard, bogies standing on gradients may start moving due to heavy wind and may cause an accident. Then third point here mentioned, the locomotives will require an extra force or pull the train on gradients at the time of starting the trains. In station yards, the maximum limit of the gradient is fixed as 1 in 400 and minimum gradient recommended is 1 in 1000 for easy drainage of rainwater. यह आप लोग का है स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। ये स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट का स्लाइड है, ऐसे रहता है स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। उसका बाद आप लोग को ये पॉइंट दिखा रहा हो, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन और कैंट is the difference in height between the outer and the inner rail on a curve. It is provided by gradually lifting the outer rail above the level of the inner rail. Number 2, the inner rail is taken number 3, the inner rail is taken as the reference rail and is normally maintained as its original level. Number 4, the inner rail is also known as the gradient rail. Number 5, actual cant for BG, broad gauge track limited to, here BG is for broad gauge track limited to 165 mm. ये सुपर एलिवेशन का वो है आप लोग का, मतलब ग्रेजुअली लिफ्टिंग जो जैसे करता है आउटर सेल और इनर रेल, आउटर रेल एंड इनर रेल कर्व, ये सुपर एलिवेशन का कर्व है। यहाँ पे क्राउन सेक्शन है, लेवल सेक्शन, टेंजेंट, रन आउट। जो 20 का रहता है वो कर्व होता है, वो फुल सुपर एलिवेशन में होता है। 20 का जो है वो सेंटर लाइन है। ये है आप लोग का सुपर एलिवेशन का ग्राफ। ये है आप लोग का सुपर एलिवेशन, आप स्लाइड में देख सकता है। उसका बाद आएगा कैंट डिफिशियंसी, उसका बाद आएगा ग्रेड कॉम्पेंसेशन ऑफ कर्व, ब्रॉड गॉज इन ग्रेड कॉम्पेंसेशन ऑफ कर्व, ब्रॉड गॉज ट्रैक, यहाँ पे 0.04% per degree of curve, and meter gauge track is from 0.03% per degree of curve. NG track 0.02% per degree of curve. Here we discussing about now point and crossing. Point and crossing are provided to help transfer railway vehicles from one track to another. The tracks may be parallel to, diverging from, or converging with each other. Point and crossing are necessary because the wheel of railway vehicles are provided with inside flanges, and therefore they require this special arrangement in order to navigate their way on the rails. The point or switches aid in diverting the vehicles, and the crossing provide gaps in the rails so as to help the flanged wheels to roll over them. Here direction of a turnout दिखा रहा है आप लोग को। उसका बाद ये है आप लोग का कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ रन आउट, वो जो ग्राफ में दिखा था वो इसका ग्राफिक्स है।
उसका बाद इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस पॉइंट शुड बी चेक्ड। आप लोग का रेलवे में ये जो फॉलोइंग वो जो पॉइंट्स है वो इंस्पेक्शन करने के लिए एंड मेंटेनेंस करने के लिए क्रॉसिंग का ये मेन पॉइंट है। कंडीशन ऑफ टोंग रेल्स एंड स्टॉक रेल्स, कंडीशन ऑफ फिटिंग ऑफ टोंग एंड स्टॉक रेल्स, गॉज एंड क्रॉस लेवल एंड स्विच असेंबली। उसका बाद क्लियरेंस बिटवीन स्टॉक एंड टोंग रेल्स एट द हील ऑफ द स्विच। उसका बाद आएगा आप लोग का 5th नंबर, थ्रो ऑफ द स्विच। द थ्रो ऑफ द स्विच शुड बी एज फॉलोज रिकमेंडेड मीडियम। ब्रॉड गॉज for broad gauge 115 millimeter and for meter gauge 100 millimeter. Then 6 number, condition of crossing and tongue rail. Number 7, gauge and cross level of crossing assembly. उसका बाद आएगा check nails, check rails. 9 नंबर पे है आप लोग का lead curvature and 10 cross level on straight tracks and turnouts. 11 नंबर स्लीपर्स, 12 ballast and drainage. उसका बाद आएगा एनी अदर डिफेक्ट। इफ देयर आर एनी अदर डिफेक्ट इन द लेआउट दिस शुड बी चेक्ड एंड करेक्टेड। आप लोग को दिखा रहा हूँ अच्छे से। ये है आप लोग का पॉइंट एंड क्रॉसिंग का पिक्चर। ये स्लाइड में जो दिख रहा है वो क्रॉसिंग जब करके जाता है ऐसा मतलब वो ट्रैक होता है जहाँ पे क्रॉसिंग होता है रेल, तो ये है पॉइंट एंड क्रॉसिंग। उसका बाद आ रहा है आपको क्रॉसिंग, ये ट्रैक ऐसा होता है जिसमें लाइन चेंज करता है। उसका बाद आता है डायरेक्शन ऑफ रन आउट, वो एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक तक कैसा पहुंच जाता है, तो ये है डायरेक्शन ऑफ टर्न आउट। उसका बाद है डिजाइन ऑफ टोंग रेल्स, ये है डिजाइन ऑफ टोंग रेल्स। देन उसका बाद गॉज एंड क्रॉस लेवल, ये आप लोग का है गॉज एंड क्रॉस लेवल जो स्विच असेंबली में होता है। ये है टोंग रेल। उसका बाद है आप लोग का ट्रैक गॉज, ट्रैक गॉज ऐसा होता है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल लेवल एंड अलाइनमेंट। देन उसका बाद है लेवल ऑफ क्रॉसिंग, लेवल ऑफ क्रॉसिंग। देन अब जो 9 नंबर पॉइंट था वो था लीड कर्वेचर। तो लीड कर्वेचर ऐसा होता है जो ट्रेन जब आता है तो ऐसा मतलब वो कर्व होता है, वो लीड कर्वेचर है। उसका बाद है आप लोग का यार्ड, स्टेशन एंड यार्ड। स्टेशन एंड यार्ड, यार्ड जो बोलता है वो जो जगह को बोलता है रेलवे का, वो यार्ड बोलता है। तो ये आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं अभी वो रेलवे यार्ड है। स्टेशन एंड यार्ड्स, सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर रेलवे स्टेशन। यहाँ पे है आप लोग का एडिक्वेट लैंड, देयर शुड बी एडिक्वेट लैंड अवेलेबल फॉर द स्टेशन बिल्डिंग, नॉट ओनली फॉर द proposed line but also for any future expansion. The proposed area should also be without any religious buildings. उसका बाद है आप लोग का लेवल एरिया विद गुड ड्रेनेज। द proposed site should preferably be on a fairly level ground with good drainage arrangement. It should be possible to provide the maximum permissible gradient in the yard. In India, the maximum permissible gradient adopts is 1 in 400, but a gradient of 1 in 1000 indesirable. In gravity of ballast, broad gauge track, meter length. ये आप लोग कैसा होता है एडिक्वेट लैंड एंड लेवल एरिया गुड ड्रेनेज, ये दिखा तो आप लोग को। ये आप लोग का है एडिक्वेट लैंड ऑफ रेलवे, जो रेलवे का मतलब लैंड है, प्रॉपर्टी है, तो रेलवे एडिक्वेट लैंड ऑफ रेलवे।
उसका बाद है आप लोग का लेवल एरिया विथ गुड ड्रेनेज, जहाँ पे आप लोग का प्रोपोज साइट प्रेफरेबली बी ऑन ए फेयरली लेवल ग्राउंड विथ गुड ड्रेनिंग अरेंजमेंट। उसका बाद है आप लोग का ट्रैक अलाइनमेंट। Track alignment, the station site should preferably have a straight alignment so that the various signals are clearly visible. The proximity of the station site to a curve presents a number of operational problems. यहाँ पर ट्रैक अलाइनमेंट ऐसा होता है, ये ट्रैक अलाइनमेंट। देन आप लोग को देख रहा है अभी दिखाया था जो वो लेवल एरिया विथ गुड ड्रेनेज, एंड उसका बाद आया था अलाइनमेंट। द स्टेशन साइट शुड प्रिफरेबली हैव ए स्ट्रेट अलाइनमेंट सो दैट द वेरियस सिग्नल्स आर क्लियरली विजिबल। द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्टेशन साइट टू ए कर्व प्रेजेंट्स ए नंबर ऑफ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ये आप लोग का है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का पिक्चर दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये जो दिखाया था मैंने ट्रैक अलाइनमेंट ऐसा होता है। उसका बाद ट्रैक अलाइनमेंट का सर्वे ऐसा करता है, रेलवेज लोग सर्वे ऐसा करता है, सर्वे ऑफ अलाइनमेंट। उसका बाद आप लोग का है इजी एक्सेसिबिलिटी। वो जो इंडियन रेलवे का है फोटो, आई मीन स्लाइड, वो इजी एक्सेसिबल, आई मीन ट्रेन से उतरते वक्त वो इजीली मतलब स्टेशन उतर सकता है, वो है इजी एक्सेसिबिलिटी। इजी एक्सेसिबिलिटी, the station site should be easily accessible. The site should be near villages and towns. Nearby villages should be connected to the station by means of approach roads for the convenience of passengers. Then आप लोग का है water supply arrangement. When selecting the site, it should be verified that adequate water supply is available for passengers and operational needs expansion. उसका बाद है आप लोग का फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन। उसका बाद है आप लोग का द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड एट स्टेशंस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग मेंस ग्रुप्स। आप लोग का एक नंबर है पैसेंजर रिक्वायरमेंट, 2 ट्रैफिक रिक्वायरमेंट, 3 लोकोमोटिव कैरियर्स एंड वैगन रिक्वायरमेंट्स, स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। ये आप लोग का facilities required at railway station, passenger requirement, inquiry office and reservation office, platforms and platform seats, waiting rooms and retiring rooms, refreshment rooms and tea stalls, bathrooms and toilets, drinking water supply arrangements and approach roads. ये आप लोग का पैसेंजर रिक्वायरमेंट। उसका बाद आया है ट्रैफिक रिक्वायरमेंट, स्टेशन बिल्डिंग, station master's office and others office, signal cabins, goods sets and goods platforms, reception and departure lines and sidings, breakdown trains and arrangement for the same, etc. ये आप लोग का ट्रैफिक रिक्वायरमेंट। ये है फैसिलिटीज ऑफ रेलवे। पैसेंजर रिक्वायरमेंट ये है आप लोग का, वो बैठने के लिए अच्छा जगह है, सेज है, उसका बाद है आप लोग का हॉल्ट रेलवे स्टेशन। नाउ टाइप्स ऑफ स्टेशन, द लेआउट्स रिक्वायर्ड फॉर पैसेंजर स्टेशन एंड देयर ईयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। यहाँ पे आप लोग का है हॉल्ट स्टेशन, फ्लेक्स स्टेशन, रोड साइड और क्रॉसिंग स्टेशन, जंक्शन स्टेशन, टर्मिनल स्टेशन। यह है आप लोग का स्टेशन वाइज वाइडली एक्सप्रेशन टाइप्स ऑफ स्टेशन।
ये आप लोग का हॉल्ट रेलवे स्टेशन, हॉल्ट रेलवे स्टेशन। उसका बाद है आप लोग का फ्लैग रेलवे स्टेशन। फ्लैग रेलवे स्टेशन ऐसा होता है। उसका बाद रोड साइड और क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, जो रोड का बगल में जाता है वो क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन, जो रोड साइड पर होता है। उसका बाद है जंक्शन स्टेशन। उसका बाद टर्मिनल स्टेशन। ये है आप लोग का वे साइड और क्रॉसिंग स्टेशन। उसका बाद हम डिस्कस करना चाह रहे हैं यार्ड का बारे में, रेलवे यार्ड। A yard is system of track laid out to deal with the passenger as well as good traffic being handled by the railways. This includes receipt and dispatch of trains apart from stabling, sorting, marshalling and other such function. Yard are normally classified into the following categories. यहाँ पे यार्ड को क्लासिफिकेशन कर रहा है, तो कोचिंग यार्ड है यहाँ पे 1 नंबर में। उसका बाद आप लोग का गुड्स यार्ड। उसका बाद 3 नंबर में मार्शलिंग यार्ड। उसका बाद फ्लैट यार्ड, ग्रेविटेशन यार्ड एंड हम्प यार्ड। उसका बाद 4 नंबर लोकोमोटिव यार्ड। 5 नंबर सीक लाइन यार्ड। तो आप लोग को पिक्चर स्लाइड में पिक्चर दिखा कर देता हूँ। ये है कोचिंग यार्ड ऑफ रेलवे स्टेशन। उसका बाद ये है गुड्स यार्ड, जहाँ पर रेलवे स्टेशन का सामग्री रहता है वो गुड्स यार्ड बोलता है। उसका बाद ये आप लोग को स्लाइड में दिखा रहा है वो मार्शलिंग यार्ड है। उसका बाद है ये फ्लैट यार्ड। उसका बाद ये ग्रेविटेशन यार्ड, आपको डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ ग्रेविटेशन यार्ड। Gravitation yard. In this yard, the level of the natural ground is such that it is possible to lay some tracks at a gradient. The tracks are so laid that the wagons move to the siding assigned for the purpose of sorting by the action of gravity. Sometimes shunting is done with the help of gravity assisted by engine power. However, it is very seldom that natural ground level are so well suited फॉर ग्रेविटेशन यार्ड। ये आप लोग का ग्रेविटेशन यार्ड जो पिक्चर मैंने दिखाया था। उसका बाद है आपको हम्प यार्ड, लोकोमोटिव यार्ड, सीक लाइन यार्ड। ये है स्लाइड में पिक्चर वो जो हम्प यार्ड का है। उसका बाद ये जो इंजन सब कुछ इंजन यहाँ पे रखता है वो लोकोमोटिव यार्ड है। उसका बाद ये जो है सीक लाइन यार्ड। देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट फॉर ट्रैक मेंटेनेंस there are some tools required and their function each are under measuring equipment and under maintenance tools. ये आप लोग का रेल गोस टूल्स है। उसका बाद ये है स्ट्रेट एज एंड स्पिरिट लेवल, जो रेलवे में बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका बाद ये है गॉस कम लेवल। उसका बाद ये है कैंट, देन मेलेट और वुडन हमर। ये आप लोग का वुडन हमर। उसका बाद टी स्क्वायर, स्टेप्ड फिलर गॉस, स्लीपर टोंग, रेल टोंग, बीटर, क्राउबर, जिम क्राउ, स्पाइकिंग हमर, बालास्ट ट्रैक, फावड़ा, ऑगर,
box spanner, wire basket, pen iron, and we will be discussing about duties of mates. Every mate should make sure that the length of line under his charge is kept safe for the passage of trains. Sections needing urgent attention should be taken care of without waiting for orders for PWIS. I mean जो ड्यूटीज है मैथ लोग का वो है आप लोग का फर्स्ट में नॉलेज ऑफ रूल्स एंड सिग्नल्स, देन सेफ्टी ऑफ लाइन, then equipment as site of work, then masters and gangsters diary, then observance of sleeper packing during passage of train books, precaution when view is obstructed, tidiness of section, safe custody of tools. उन लोग का ड्यूटी बहुत मतलब अर्जेंट होता है वो मेट. और उसका बाद होता है ड्यूटीज ऑफ कीमैन. Railway skimen who walk 8 km every day, inspecting every crack and every nut and bolt to detect defects on tracks and ensure their repair in time for trains to pass, have pleaded with the railway board to reduce their beat length to 3 km, which they say will improve. और कीमेन का जो है ड्यूटी वो बहुत मतलब सिंसियरली होता है. एक्चुअली वो नॉलेज ऑफ सेफ्टी फर्स्ट रूल्स वो दिखता है. तो मेरा वीडियो यही था. आप लोग को कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बोलना. और मैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छा और न्यू अपडेट लेकर आऊँगा. तो थैंक यू. आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू.